ناظرین السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا آغاز، کارروائی 2 جنوری تک کے لیے ملتوی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ سے کیا مصافحہ، ہریش راؤ اور ریاستی وزراء کے درمیان نوک جھونک۔ اسمبلی اجلاس کی کارروائی چلانے کو لے کر BSc اجلاس میں فیصلہ نہیں ہو پایا۔ 15 دن اجلاس چلانے اپوزیشن کا زور، 1 ہفتے تک اجلاس چلائے جانے کا امکان۔ فیس باز ادائیگی، اوورسیز اسکالرشپ کے بقایاجات ادا کیے جائیں۔ نامپلی کے ہاسپٹلز کے مسائل پر توجہ دیں۔ رمضان سے متعلق اجلاس جلد طلب کیا جائے، اسمبلی میں مجلسی ارکان کے مطالبے۔ شمشیر گنج میں چینی مانجے کی زد میں آ کر نوجوان زخمی، حالت نازک۔ چھتری ناکہ میں پولیس کا کریک ڈاؤن، بھاری مقدار میں چینی مانجا ضبط۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس with suggested interior، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈز 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا پیر سے آغاز ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر سابق ارکان اور وزیر رام ریڈی دامودر ریڈی اور کنڈا لکشمن ریڈی کو خراج پیش کرتے ہوئے کچھ دیر خاموشی اختیار کی گئی۔ پھر وقفہ صفر کا آغاز ہوا۔
वक्फे सिफर के बाद कार्रवाई को 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर की कार्रवाई के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने तमाम महकमे जात के सेक्रेटरीज के साथ इजलास तलब किया। असम्बली के सरमा इजलास से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। तेलंगाना असम्बली इजलास के आगाज पर जब वजीर आला रेवंत रेड्डी ऐवान में पहुंचे, उन्होंने कायदे अपोजिशन बीआरएस सरबराह केसीआर की नशिस्त तक जाकर मुसाफा किया और उनकी सेहत से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे वजीर आला रेवंत रेड्डी का भी पार्टी के अरकान मुकर्रना और ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। इससे पहले बीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव के असम्बली पहुंचने पर पार्टी के अरकान मुकर्रना ने नारों की गूंज में केसीआर का इस्तकबाल किया। पार्टी ऑफिस में केसीआर ने रजिस्टर पर दस्तखत किए। असम्बली के इजलास में भी उन्होंने शिरकत की, तहम साबिक अरकान की ताज़ियती करारदाद के बाद वो ऐवान से चले गए। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। असम्बली में हरीश राव ने कहा, मुलाजमीन के डीए ज़ेर इल्तिवा हैं। हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम को भी हुकूमत ने बंद कर दिया है। रिटायर्ड मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इख्तिदार में आने के लिए हुकूमत ने अवाम से बुलंद दावे किए थे, लेकिन उन वादों को नज़रअंदाज कर दिया गया। हरीश राव ने कहा, सरकारी मुलाजमीन से इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए उन्हें फौरी पूरा किया जाए। असम्बली में बीआरएस के रुकन कौशिक रेड्डी ने उनके हल्के के चेक डैम्स को धमाकों से उड़ाए जाने का इल्जाम लगाया। कौशिक रेड्डी का कहना था कि जिस तरह मेडिगड्डे के पिलर्स को धमाकों से उड़ाया गया, उनके हल्के के चेक डैम्स को भी धमाके से उड़ाया गया है। उन्होंने इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। जुबली हिल्स के नवमुंतखबा रुकन असम्बली नवीन यादव ने पीर को पहली बार असम्बली इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि काम खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस ऐवान में पहुंचाया, जिसका वो शुक्रिया अदा करते हैं। नवीन यादव ने कहा, पार्टी अरकान के मशवरे से वो हल्के के अवाम के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 30-40 साल से बारिश के दौरान उनके हल्के के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नवीन यादव ने यह भी कहा कि ज़ेर ज़मीन केबल्स का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाए तो बेहतर होगा। रुकन असम्बली ने कहा कि पैसों की कमी की वजह से कई तलबा 10वीं जमात के बाद तर्क तालीम कर रहे हैं, इसलिए उनके हल्के में इंटर व डिग्री कॉलेज कायम किया जाए। असम्बली का सरमाही इजलास कितने दिन चलेगा, इसका फैसला स्पीकर करेंगे। बीएससी के इजलास में कितने दिन इजलास चलाया जाएगा, उस पर अब तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं लिया गया। बीएससी के बाज़ अरकान का कहना था कि इजलास 1 हफ्ते तक चलने वाला है, जबकि हुक्मरान जमात के कायदीन का कहना है कि स्पीकर का फैसला ही ख़तई होगा। हुक्मरान जमात के कायदीन के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से मुतालबा किया गया कि 15 दिन इजलास तलब किया जाए, इसके लिए हम तैयार हैं। ताम कायदीन का कहना है कि ख़तई फैसला स्पीकर करेंगे और वही ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास 2 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगा। इतवार को असम्बली इजलास नहीं होगा। स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार की सदारत में असम्बली में वाक़ स्पीकर के चैम्बर में असम्बली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में शिरकत करने वाले अरकान में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर बरामूर असम्बली डी श्रीधर बाबू, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप बिरला लैया, अरकान बीआरएस के टी हरीश राव, बीजेपी के पायल शंकर, मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, सीपीआई के सामा शिवराव शामिल थे। इसके अलावा सेक्रेटरी कानून साज असम्बली भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को असम्बली में साबिक वज़ीर आला केसीआर की आमद और जल्द रवानगी पर कहा, यह सवाल केसीआर से ही पूछा जाना चाहिए। असम्बली लॉबी में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने मज़ाही अंदाज में कहा, असम्बली में केसीआर से उनकी क्या बातचीत हुई, वो मीडिया को क्यों बताएं। वज़ीर आला ने कहा कि असम्बली लॉबी को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल जैसा बनाया जाएगा। साबिक एमएलएज और मीडिया के नुमाइंदों को रसाई फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि साबिक अरकान असम्बली के लिए सेंट्रल हॉल में खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। बजट इजलास तक कौंसल के मरम्मती काम मुकम्मल करने का मंसूबा है। वज़ीर आला ने बताया कि बीएससी के इजलास में यहां पर फैसला किया जाएगा कि असम्बली के अय्याम कितने दिनों के होंगे। बीआरएस पार्टी के वफ्द ने स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए पालमरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मौका देने की दरख्वास्त की है। आबी तकसीम के मामले में बीआरएस पार्टी का कहना है कि वो अपना मौक़िफ़ ऐवान में रखना चाहती हैं।
हरीश राव की क़ियादत में वफ़द ने स्पीकर से मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के मरम्मती कामों का जायजा लिया। स्पीकर यहां पर बताया जाता है कि कौंसिल के सदरनशीन सुखिंदर रेड्डी के हमरा उन्होंने पीर के दिन कौंसिल का मुआयना किया। इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों को भी वज़ीर आला ने हिदायत दी। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सीआर के दौर हुकूमत में 11% सूद शरह पर खर्च लिया गया था। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए 70,000 करोड़ रुपए का तखमीना था, लेकिन सिर्फ 27% काम मुकम्मल किया गया। बीआरएस के दौर में कई काम अधूरे किए गए। उन्होंने कहा कि जब कालेश्वरम पर केसीआर ने दिलचस्पी दिखाई तो पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को उन्होंने क्यों नजरअंदाज किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने जानबूझकर पालमोरू प्रोजेक्ट के काम को सुस्त तौर पर करने की हिदायत दी थी। रियासती वजीर ने कहा, बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में कृष्णा नदी से 45 टीएमसी पानी पर रजामंदी ज़ाहिर की गई थी। बीआरएस हमेशा इस कैंप के नाम पर रियासत के अवाम को गुमराह करती आ रही है। साबिक वज़ीर आला केसीआर की असम्बली आमद और फिर जल्द रवानगी को लेकर कांग्रेस लीडर्स की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए परगी के एमएलए राम मोहन रेड्डी ने कहा, केसीआर से दस्तखत करने के लिए असम्बली आए थे। साबिक वज़ीर आला के रवैये पर रियासत के अवाम हंस रहे हैं। आनजहानी अरकान के लिए केसीआर ने चंद अल्फाज भी अदा नहीं किए। साबिक वज़ीर आला को असम्बली का कोई एहतराम नहीं है। कांग्रेस के एक और लीडर बी एलैया ने कहा, अपनी माहाना तनख्वाह को यकीनी बनाने और असम्बली की रुकनीत पर कोई एतराज़ ना करे, इसलिए केसीआर असम्बली आए। केसीआर स्पीकर को बताए बगैर ऐवान से उठकर चले गए। केसीआर को असम्बली का एहतराम नहीं आता। सिर्फ केसीआर की असम्बली आमद को लेकर सोशल मीडिया पर बीआरएस की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन केसीआर ने असम्बली की तौहीन की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने असम्बली में ज़ेर इल्तिवा फीस बाज़दागी ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के बकायाजात की अदायगी के सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने कहा कि न सिर्फ ओवरसीज स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक और फीस बाज अदायगी की रकम भी अदा नहीं की जा रही है। इस वजह से तुलबा और सरपरस्तों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई कॉलेजेस तुलबा को सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। कई इदारे बंद होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने लेक्चरर्स और असातिज़ा को तनख्वाह भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और असातिज़ा की नौकरियां खतरे में हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द इस मसले की एकसुई की जाए। श्री बलालगर। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप बिल्कुल ही नहीं दी जा रही है। ना सिर्फ ओवरसीज स्कॉलरशिप बल्कि पोस्ट मैट्रिक रिएम्बर्समेंट भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी तरफ से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स को तकलीफ़ हो रही है, ना पेरेंट्स को तकलीफ़ हो रही है। बच्चों के सर्टिफिकेट स्कूल्स और कॉलेजेस से उनके सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम इदारे बंद होने की कगार पर आकर रुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से जब तक फीस रिएम्बर्समेंट उनको इदारों को, कॉलेजेस को नहीं आता, वो अपने स्टाफ की सैलरी भी नहीं दे सक रहे हैं। तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर फ़ी रिएम्बर्समेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप के जो भी अमाउंट्स है उसको रिलीज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि कई कॉलेजेस बंद हो जाएं और कई बेरोज़गारियां पैदा हो जाएं। असातिज़ा के, टीचर्स के, लेक्चरर्स के, प्रोफेसर्स के नौकरियां ख़तरे में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे और इमीडिएट तौर के ऊपर ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या फ़ी रिएम्बर्समेंट है, जो भी है ये डिसबर्स करे, ताकि जो स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स और कॉलेज मैनेजमेंट, स्टाफ, हर कोई इसकी वजह से परेशान है। बहुत बड़ा इसका मसला पैदा होने का डर है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये तमाम चीज़ों का हल करें। शुक्रिया। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पीर को तेलंगाना असम्बली सरमा इजलास के पहले दिन मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। हल्क़े नामपल्ली में सफाई के इंतजामात के अलावा माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र जल्द इजलास तलब करने का मशवरा दिया। रुकन असम्बली का कहना था, रमज़ान से पहले
शब मेराज और शब बारात भी है, इसलिए इस बार इजलास जल्द तलब किया जाए। सर मेरा सवाल सीधे ये है कि जीएचएमसी के अंदर सैनिटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा सर, यहाँ तक कि ना गार्बेज लिफ्टिंग प्रॉपर है सर, ना स्वीपिंग प्रॉपर है सर। क्योंकि आप देखते हैं कि स्वीपिंग स्टाफ कम की तरफ से एक लोकेलिटी के अंदर बाइलेंस में वीक 10 डेज में एक बार स्वीपिंग हो रही सर। तो मेरा आपके जरिए से सीधा मिनिस्टर साहब को ये सवाल है कि सर आज हम जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सराउंड एरिया बढ़ा रहे हैं, जरूर है सर, मगर जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसके अंदर ना प्रॉपर सैनिटेशन लिफ्टिंग है सर गार्बेज की, ना स्वीपिंग बराबर है। उसके अलावा सर स्ट्रीट लाइट का भी सेम पोजीशन है सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत को यह कहना चाहता हूं, इसके ऊपर न सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है, पब्लिक के हेल्थ का भी ख्याल रखने की जरूरत है सर। और एक अहम बात यह है सर, आने वाला टाइम 18 फरवरी से रमजान का महीना शुरू हो रहा है सर। हमेशा हुकूमत ने इसकी मीटिंग रखती है सर। मैं आपके जरिए से यह कहना चाहता हूं, आपके मीटिंग थोड़ा अर्ली रखिए सर, अर्ली रखने के बाद, ताकि रमजान के काम आने से पहले हो और हमारे जो जगने की रात है, शब मेराज, शब बारात और शब कदर, उसका भी इंतजाम करना सर। और ग्रेवयार्ड्स की साफ सफाई बेइंतहा जरूरी है सर। मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर खास तौर से तवज्जो दीजिए, क्योंकि कमिश्नर जीएचएमसी साहब भी यहां पर मौजूद है। मेरी आपके जरिए से उनको भी रिक्वेस्ट है कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने उनके हल्के के अहम हॉस्पिटल सरोजनी देवी MNJ कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के हालात पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि इन हॉस्पिटल्स पर हुकूमत की नज़र होनी चाहिए। माजिद हुसैन ने कहा कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के आउट पेशेंट वार्ड में मरीजों की तादाद के मुताबिक गुंजाइश नहीं है, इससे मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नीलोफर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और जो डॉक्टर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं उन पर गैर मामूली दबाव है। ये हॉस्पिटल तेलंगाना के करीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमें मौजूदा डॉक्टर्स पर दबाव को कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। इस सिलसिले में इंचार्ज वजीर के साथ फौरी जायजा इजलास तलब किया जाए। माजिद हुसैन ने हॉस्पिटल्स के लिए दरकार आलात के लिए भी तवज्जो दिलाई। श्री माजिद हुसैन। स्पीकर साहब, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने जीरो ओवर में मुझे मौका दिया। मैं आपके जरिए से हुकूमत के सामने ये बताना चाहता हूं साहब कि नामपल्ली हल्के में मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो रियासत तेलंगाना के सबसे बड़े हॉस्पिटल है, एक है MNJ कैंसर हॉस्पिटल, दूसरा है नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तीसरा है सरोजनी देवी हॉस्पिटल और एक सबसे बेहतर परफॉर्मिंग नामपल्ली वार्ड हॉस्पिटल है साहब, जिसके ऊपर हुकूमत की नजर होना सख्त जरूरी है। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में करीबन 500 से ज्यादा आउट पेशेंट्स हर रोज आते हैं और उसका आउट पेशेंट वार्ड तकरीबन पूरा कंजस्टेड हो चुका है और वहां पे जो गरीब आता है उनके लिए कई दुश्वारियां वहां पे हो रही है। और खास तौर से वहां पे जो डॉक्टर्स के पोस्ट है, चाहे वो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल रही है या नीलोफर रही है या सरोजनी और MNJ, कई डॉक्टर्स के पोस्ट वेकेंट है और जो प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है इतने ज्यादा नंबर्स को कैटर करने के लिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है साहब कि ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो तेलंगाना के ज्यादातर गरीबों के जो मेजर बीमारियां हैं और जो बच्चों का इलाज है यहाँ पे हो रहा है, वहां पर साहब एक ICU भी होना बेइंतहा जरूरी है नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में। अगर कोई सीरियस कोई पेशेंट या खवातीन वहां पे आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर उस हालत में वहां से उस्मानिया भेजा जा रहा है, जो उन गरीब औरतों के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। और आप और हम यहाँ पे इसलिए है कि इनको सहूलत दे सके। उनकी सहूलत इसमें है साहब कि हम वहां पे फौरी तौर पे एक ICU बनाएं। उसी के साथ साथ नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, अफसोस की बात यह है साहब, 2 साल पहले इसी जीरो ओवर में मैंने यहां पे एक मुद्दा उठाया था कि वहां पे एक MRI की सख्त जरूरत है और मुझे यहां पे तवक्कुन दिया गया था हो जाएगा। 2 साल हो गए, नहीं हुआ सर। बच्चों को, छोटे बच्चों को MNJ कैंसर हॉस्पिटल में जाकर MRI कराना पड़ रहा है। हमें इमीडिएट तौर पे नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में MRI लाना पड़ेगा। इसके साथ बस एक छोटी एक हट के बाद साहब, यहां मेरे नामपल्ली हल्के में एक वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजार घाट में है सर, ये चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पिछली बार बारिशों में हर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज पूरा डिलैबरेट कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी जिंदगियों को खतरा है।
हम ये चाहते हैं साहब ये मुद्दों पे सीरियसली तौर पे नोट लिया जाए, एक रिव्यू मीटिंग इंचार्ज मिनिस्टर साहब के जरिए से इन तीनों चारों हॉस्पिटल की बुलाया जाए, वोकेशनल जूनियर कॉलेज को इमीडिएट सीरियस तौर पे लेते हुए वहां की जो सैंक्शन अमाउंट, मेरे हिसाब से साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 बार वो फाइल आई वोकेशनल जूनियर कॉलेज की, अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो अपने गरीब बच्चे जो माशी तौर पे कमजोर है, जो पैसों की वजह से अच्छे कॉलेजेस को नहीं जाते, जो वहां पे जाते हैं, उनकी हम हिम्मत बन सकते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को मैं इत्तला देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आएगा और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसकी फौरी तौर पे रिव्यू मीटिंग ले। शुक्रिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की कार्रवाई को भी 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर को इजलास के आगाज पर कौंसिल के साबिक रुकन हाफिज पीर शब्बीर अहमद को खिराज पेश किया गया। सदर नशीन जी सुखैदर रेड्डी ने 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करने का ऐलान किया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स में मुस्लिम खबरस्तान के मसले को हुकूमत ने हल करते हुए मुसलमानों की एक दरीना ज़रूरत की तकमील के लिए इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में वज़ीर अखलाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर माल इत्तलात ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन टिमरीज फ़हीम कुरैशी, मुक़ामी रुकन असम्बली नवीन यादव ने शिरकत की। हल्के के एर्रागड्डा, बोराबंडा और शेखपेट डिवीज़न के अवाम ने मुस्लिम मैयतों की तदफीन में हो रहे मसाइल से हुकूमत को वाकिफ करवाया था। वज़ीर माल ने कहा कि इस हल्के में दस्तियाब सरकारी अराजी को लैंड ग्रैबर्स के कब्जे से छुड़ाकर अवामी मकासद बशमूल मुस्लिम खबरस्तान के लिए अलॉट किया जाएगा। महकमे माल वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से कहा गया कि मुकम्मल तालमेल के साथ अराजियात का अलॉटमेंट किया जाए। वज़ीर अखलाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के मसाइल के हल में संजीदा है, उनकी तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाना चाहती है। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के आला अहदेदार मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आदिलाबाद जिले की सीमेंट फैक्ट्री अपने बहनोई के हवाले करना चाहते हैं। केटीआर ने कहा कि जब रेवंत रेड्डी आदिलाबाद आते हैं, कांग्रेस कारकुनों से ज्यादा बीजेपी के कारकुन शोर मचाते हैं। केटीआर ने सवाल किया, बीजेपी के लोग क्या इसलिए शोर मचा रहे हैं कि रेवंत रेड्डी सीमेंट फैक्ट्री फरोख्त कर रहे हैं? केटीआर ने कहा, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तयक़ुन दिया था कि सीमेंट फैक्ट्री को खोला जाएगा, लेकिन उस वादे को फरामोश कर दिया गया। केटीआर ने यह भी कहा कि इन्हिराफ करने वालों के लिए बीआरएस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। केटीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर भी रेवंत रेड्डी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जानबूझकर पालमोरू प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर बल्दिया आरवी कर्नन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को इस बात से वाकिफ कराया कि तमाम कामों को माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पूरा किया जाए। इसमें मेंटेनेंस, कचरे की निकासी के अलावा बरखी के काम और सफाई अमले की तादाद में इजाफा शामिल हैं। रुकन कौंसल ने खास तौर पर कमिश्नर बल्दिया से कहा कि शहर की मसाजिद के पास रोजाना 2 दफ़ा सफाई और कचरे की निकासी के काम किए जाएं, स्ट्रीट लाइट्स के मरम्मती काम किए जाएं, नाकारा लाइट्स को तब्दील किया जाए। इस मौके पर उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। इजलास में जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन अनुराग जयंती ने भी शिरकत की। तेलंगाना असम्बली के पास पीर को उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई जब साबिक सरपंचों ने ज़ेर इल्तवा बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद साबिक सरपंच असम्बली की तरफ बढ़ रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। नुमाइश सोसाइटी ने अवाम को नए साल की पेशगी मुबारकबाद पेश की है। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर सोकेश रेड्डी और सेक्रेटरी BN राजेश्वर ने मुश्तरका तौर पर 4TV से बात करते हुए कहा कि हमारी अपनी नुमाइश को मजीद खूबसूरत और सिक्योरिटी व सेफ्टी के लिहाज से मुस्तहकम बनाने के लिए हर साल से ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नुमाइश को कदीम हैदराबादी अवाम अपना दूसरा घर समझते हैं। नुमाइश सोसाइटी हासिल होने वाली आमदनी का तमाम रुपया तालीम पर खर्च करती है। उन्होंने बताया कि बाज़ ऐसे अफराद जिन्होंने नुमाइश सोसाइटी को रकमी धोखा दिया है, वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नुमाइश सोसाइटी आमदनी और अखराजात का सारा हिसाब नुमाया रखती है। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने आइंदा साल होने वाले सेट इम्तिहानात के लिए कन्वीनर्स के नामों का ऐलान कर दिया है। एफसेट JNTUC के तहत होगा,
प्रोफेसर के विजय कुमार रेड्डी सीनियर प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग JNTU को एपसेट का कन्वीनर बनाया गया है। एडसेट काकतिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किद होगा। प्रोफेसर B वेंकट राम रेड्डी कन्वीनर बनाए गए हैं। आईसेट महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किद किया जाएगा। A रवि को कन्वीनर बनाया गया है। ईसेट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत होगा। प्रोफेसर B चंद्रशेखर को कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। महकमे बरखी की तरफ से आनंद नगर में बरखी के फीडर्स के मरम्मती काम जारी हैं, जिसकी वजह से 30 दिसंबर को चंचलगुड़े के इलाके जात डॉन स्कूल, बीबी कैंसर हॉस्पिटल, राज दरबार, जायका होटल, इब्राहिम फंक्शन हॉल और बाबू मियां की डेयरी के इलाके जात में बरखी सरबराही मजबूत रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर दारुश्शिफा के इलाके में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में दबिरपुरा डिवीजन में 26 लाख रुपए 50,000 की मालत से सीसी रोड बिछाई गई। रुकन बल्दिया अलमदार वालाजाही ने बताया कि मज़कूरा रोड 2 मरहलों में पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस के MP फंड से ये काम किए गए हैं, जो इबादत खाना हुसैनी से दारुश्शिफा तक बिछाई गई है। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में ज़ायद अज़ 1 लाख अफराद ने ज़ू पार्क का मुशाहदा किया, जो एक रिकॉर्ड है। इस सिलसिले में ज़ू इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सफाई के अमले और अहदेदारों के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किया गया था। हजूम की वजह क्रिसमस और स्कूल की छुट्टियां बताई गई हैं। ज़ू पार्क की मकबूलियत पूरे मुल्क में मोहताज तारुफ नहीं है। बैरूनी सयाहों के अलावा मुल्क के गोशे गोशे से लोग हैदराबाद के तारीखी मुकामात, खासतौर पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की तफरीह के लिए आते हैं। इस सिलसिले में ज़ू इंतजामिया की तरफ से टिकट जारी करने काउंटर्स और स्टाफ में इजाफा भी किया जाता है। ज़ू देखने के लिए आने वालों का कीमती वक्त लाइन में इंतजार करने में ना गुजरे। महकमे आबकारी की जानिब से बंजारा हिल्स के इलाके जहरा नगर में शराब नोशी का अड्डा कायम करने के खिलाफ मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने मीडिया को बताया कि सिलसिले में इमारत के सेलर में शराब नोशी का अड्डा कायम किया गया। उन्होंने बताया कि सिलसिले में पुलिस, महकमे आबकारी और सियासी नुमाइंदों को भी मुतला किया गया। इससे इलाके में अमन अमान को खतरा लाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि मस्जिद और स्कूल वगैरह शराब के अड्डे के करीब हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि जल्द शराब की दुकान को बर्खास्त नहीं किया गया तो हालात खराब हो सकते हैं। शमशीरगंज के हदूद में चीनी मांझे से एक नौजवान के गले कटने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नवाब साहब कुंटे का साकिन जमाल शमशीरगंज के इलाके में चीनी मांझे की जद में आ गया। उसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने उनकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस की तरफ से सख्ती के बावजूद भी शहर और उसके नवाही इलाकों में चीनी मांझे की फरोख्त का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। छतरी नाके के इलाके में पुलिस ने 27 और 28 दिसंबर को 2 केसेस दर्ज किए। चीनी मांझे के 24 बंडल को जब्त किया गया। इस मांझे को पहले ही मोहल्लिक करार दिया गया है और ये इंसानों के अलावा परिंदों और माहौलात के लिए भी इंतहाई मोहल्लिक बताया जाता है। BNS के दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने ऐलान किया कि जो भी ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त के बारे में इत्तला देगा उन्हें 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा, चीनी मांझा परिंदों, माहौलियात और इंसानियत के लिए इंतहाई मुज़िर मोहल्लिक है। इसे किसी भी हालत में उनके हल्के में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी चीनी मांझे की फरोख्त में मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में पीर को पुलिस की तरफ से मूसानगर, कमल नगर के अलावा दूसरे मुकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 25 से 30 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ब्रह्मा कसानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रोडी शीटर्स की भी निशानदही की गई है। होटल, रेस्टोरेंट्स और जूस सेंटर्स का मुआयना किया गया और तलाशी अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि अवाम में अमन कानून की पालादस्ती के लिए ये मुहिम अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि रात के औकात में घूमने वालों की तलाशी भी इस मुहिम का मकसद था। बालापुर पुलिस ने ममनुआ MDMA फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी गोदावरी के साकिन जानकी श्रीराम को 1.6 ग्राम MDMA के साथ गिरफ्तार किया गया और उसे अदालती तहवील में दिया गया है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में पीर की सुबह ट्रेन का भयानक हादसा पेश आया। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस अचानक आग के शोलों में घिर गई। कुछ ही मिनटों में ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, कोच में धुआं भर गया और एक ज़ईफ शख्स की मौत हुई है।
ये ट्रेन सुबह तकरीबन 1:30 पर बताया जाता है कि एक स्टेशन से गुजर चुकी थी। तभी पेंट्री कार के पास वाक़ 2 एयर कंडीशन को, जो कि B1 और M2 में थे, अचानक आग के शोले उड़कने लगे। पहले हल्की चिंगारियां नजर आईं और फिर देखते ही देखते आग ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। ट्रेन के कोच के अंदर सो रहे मुसाफिरीन को कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले कि धुआं पूरे कोच में फैल जाता, दोनों एसी कोच पूरी तरह से जल गए थे। आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी देखी गई। आतिशबाजी की इत्तला फौरी तौर पर लोको पायलट को दी गई, जिसने ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया और इसमें फंसे हुए अफराद को निकाला गया। गाजिया मिल्लत कॉलोनी चंदनगुट टेक के रहने वाले 37 साला शेख रहीम 28 दिसंबर से लापता बताए गए हैं। वो झगड़े के बाद घर से तैश में आकर चले गए। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि चंदनगुट्टा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज, कार्रवाई 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला से किया मुसाफा। हरीश राव और रियासती वज़रा के दरमियान नोकझोंक। असेंबली इजलास की कार्रवाई चलाने को लेकर BSE के इजलास में फैसला नहीं हो पाया। 15 दिन इजलास चलाने अपोजिशन का जोर, 1 हफ्ते तक इजलास चलाए जाने का इम्कान। फीस बाज अदायगी, ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकायाजात अदा किए जाएं। नामपल्ली के हॉस्पिटल के मसाइल पर तवज्जो दें। रमजान से मुताल्लिक इजलास जल्द तलब किया जाए। असेंबली में मजलिसी अरकान का मुतालबा।
शमशीर गंज में चीनी मांझे की जद में आकर नौजवान जख्मी, हालत नाजुक। छतरी नाका में पुलिस का क्रैकडाउन, भारी मकदार में मांझा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।